اب آپ فرمائیں، جو کہلوانا چاہیں کہلوا دیں آج۔ مولانا صاحب، ایک تو کل جو ایک واقعہ ہوا ہے نا خوشگوار، اس میں تو وضاحت تو آ گئی ہے، تو یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ اس کا بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں کہ آپ کے لیے دیکھیے وضاحت تو بالکل آ گئی ہے، اور میں خود تو نہیں تھا اس موقع پہ، گھر پہ تھا، لیکن بہرحال گولیاں لگی ہیں گاڑیوں کو، تو یہ واقعہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ میں تھا اس میں نہیں تھا، میں محفوظ رہا وغیرہ وغیرہ۔ یہ امن و امان کے حوالے سے سوالات اٹھا رہے ہیں، اور ہم جو ایک زمانے سے مسلسل یعنی پریس کانفرنس میں، اجتماعات میں بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا ہو، صوبہ بلوچستان ہو، یہ دونوں انتہائی متاثر ہیں، اور یہاں تو ایک تسلسل ہے۔ یعنی چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا باجوڑ میں ہمارے ایک ہی اجتماع میں 73 ساتھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد مسلسل وہ سلسلہ اب 80 تک پہنچ گئے۔ اس طرح دوسرے قبائلی علاقوں میں بھی، شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں، ٹانک میں، آپ جانتے ہیں ہمارے محمود خان بٹنی کے بھائی جو میئر ہیں ٹانک کے، پچھلے سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا، اس سال بھی دورے پہ نکلے تو ان پر حملہ ہوا۔ تو اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے بچایا ان کو، لیکن اس حالت میں آپ بتائیں کہ ہم کمپین کیسے چلائیں، اور اتنی بڑی سیکورٹی اپنے ساتھ لے کر جو ہم چلیں گے، ہم تو اس کے عادی نہیں ہیں، ہم تو تنہا ایک گاڑی میں سفر کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اس صورتحال میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے بالکل انہوں نے تجزیہ نہیں کیا حالات کا، اور یہ جو ایک لفظ استعمال آج کل نئی اصطلاح کے طور پر کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، یکساں مواقع، تو یکساں مواقع سے ایک پارٹی کے حوالے سے، یعنی ہم دو صوبوں کے حوالے سے یکساں مواقع نہیں ہوں گے ہمیں؟ اگر پنجاب میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے یا سندھ میں لوگوں کو پرامن ماحول مل رہا ہے، تو کیا ہمارے پختونخوا یا ہمارے بلوچستان کے لوگوں کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں یکساں مواقع دیں؟ الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں، الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن لازمی ہے، آئین کا تقاضا ہے، اور ہم نے تو تحریک اٹھائی تھی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی کی وجہ سے بھی، لیکن الیکشن دیے جائے اور الیکشن کا ماحول بھی دیا جائے۔ یہ نہیں کہ ہمیں اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ ہم صبح سے شام تک سوچتے رہیں، ہم بھی فکر مند ہوں کہ بھئی شام تک گھر واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے۔ آج میں نے لکی مورت میں دن گزارا ہے، آپ کو تو اندازہ لگائیں کہ دن کیسے گزرا ہوگا، کس سیکورٹی کے ساتھ گزرا ہوگا، اور اس سے جو پبلک کو پریشانیاں ہوتی ہیں، عوام کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، بازاروں کو جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یہ ساری کس قیمت پر آخر؟ لہذا ہم پھر اپنی بات دہرانا چاہتے ہیں کہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے یہ بذات خود ایک بدامنی کا واقعہ تو ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے صوبائی اور ضلعی، یہ آپ کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی یا پبلک کو تحفظ؟ حضرت بات یہ ہے کہ سیکورٹی فراہم بھی کرتی ہے، آج بھی فل سیکورٹی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن میں تو ان حالات میں ہوں کہ سب کو تو اس طرح نہیں ہوتا نا۔ چلو مجھے تو آپ ایک پارٹی سربراہ کی حیثیت سے ٹریٹ کر لیں، مجھے آپ ہر طرف سے سیکورٹی دے دیں، لیکن ہر امیدوار کو تو نہیں ہوتا جی۔ لیکن اس وقت جس وقت میں نے پریس کانفرنس کی اسلام آباد میں، اسی دن رات کو مجھے تھریٹ آیا کہ آپ کو تھریٹ ہے، ایک اور سیاستدان کا بھی اس میں نام تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت ہمارے لیے بہت ہی فکر مندی کا باعث ہیں، تمام پارٹیوں کے لیے، تمام امیدواروں کے لیے۔ میں نے تو پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ کمپین چلا سکتے ہیں؟ کہتے نہیں چلا سکتے۔ مولانا صاحب، ایسے حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو پائیں گے یا کرنے چاہیے؟ بھئی الیکشن کمیشن غور تو کرے اس بات پر، ہماری درخواست پر غور تو کرے۔ خود فرما رہے ہیں چیف الیکشن کمیشن صاحب خود کہ دو صوبوں کے امن کی صورتحال تشویشناک ہے، لیکن حل کیا ہے؟ میں دعا کو رہوں گا۔ اب یہ ان کا حل ہے۔ تو
तो इस तरीके से नहीं होता। देखना है कि आपके इस पे पार्टी स्पेसिफिकली इदारों की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कि आपको खतरा है, तो ऐसे हालात में इलेक्शन का होना क्या मुमकिन है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। उल्टा ये होगा कि अगर मौसम की वजह से हो या अमन व अमान की वजह से हो, टर्न आउट कम हो जाएगा, अगर लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं जाएंगे, ये धांधली का रास्ता खोलता है। तो क्या इस बात का इम्कान है कि हमारे सूबे केपी में कोई महीने डेढ़ महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी हो जाए? अब ये तो इलेक्शन कमीशन ही सोच सकता है, हम तो अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं, जो रोना धोना है वो हम कर रहे हैं, बाकी उनकी तरफ से है कि वो हमारे रोने धोने को क्या अहमियत देते हैं। खान साहब, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद मुल्क में मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा? माशी इस्तेकाम ऐसा लफ्ज़ नहीं है कि आप एक जुमले से उसको हल करें। हमने बड़ी तकरीरें सुनी हैं, हम आएंगे 6 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, 3 महीने के अंदर ठीक कर देंगे, इस तरह नहीं है जी। गुज़श्ता 3.5 सालों में 4 सालों में जो ज़मीन बोस हुआ है और जहां आपका सालाना GDP मनफी पे आ गया, उसके बाद आप दिवालियापन के बिल्कुल दहाने खड़े हो गए। और अगर हमने 15-16 महीनों के अंदर उसको दिवालिया से निकाला है मुल्क को, लेकिन अब फिर दोबारा उस किनारे पर पहुंच रहा है। मैं नहीं समझता कि आज हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त है निगरान, वो जून में बजट दे सकेगा, बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। तो इस सारी सूरत हाल को संजीदगी से लेना है। मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए आलमी एतमाद भी बहाल करना होगा। आज आलमी बिरादरी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक वो कहते हैं कि अगर दोबारा वो लोग आते हैं तो फिर हमारा पाकिस्तान से हाथ उठ जाएगा, हम अपने पाकिस्तान में फिर अपना सरमाया ज़ाया करने के लिए नहीं आ रहे। तो ये हक़ाइक़ हैं, खुदा के लिए ज़रा इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए हमें। और अगर रियासत मदीना है तो फिर रियासत मदीना में तो इंसाफ हर एक के लिए होगा, सबको हक बराबर मिलना चाहिए। ये क्या मतलब कि अगर कानून है और कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो फिर उसमें सिर्फ इमरान खान के मुखालिफिन जो हैं वो तो उसकी जद में आए, लेकिन वो कानून की जद में ना आए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बिल्कुल भी ना हो, वो बालातर हैं। इस तरह के नज़रियात पेश करना, इस तरह कौम को गुमराह करना, इस तरह नौजवान जहन को गुमराह करना, ये चीज़ें जो हैं ये नहीं चलती मुल्क के अंदर। और वो पाकिस्तान की बका के लिए ख़तरा है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि वो कोई इंतज़ामी मामलात में कमज़ोर था, वो तो था ही था, मईशत तबाह कर दी, मुल्क के वजूद को ख़तरा है। और कश्मीर के 3 हिस्सों की बात उसने की है, पाकिस्तान की तकसीम की बातें उसने की है, और ये ऐसे अंदाज में करता है कि कम अज़ कम हम जैसा सियासी कारकुन वो समझ लेता है कि इसका एजेंडा है। अफगानिस्तान के हवाले से ये सब बातें चल रही थी कि आपका विजिट है, कोई शायद वहाँ पे आप विजिट कर ले, तो जो अमन अमान के आजकल उनके साथ हालात कुछ हमारे अच्छे नहीं है, बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर इन चीज़ों का क्या होगा, या ये मसला ठीक हो जाएगा कि नहीं? हमारी कोशिश है, दावत उनकी तरफ से आई है, इमारत इस्लामिया की तरफ से बाज़ाब्ता उनके सफ़ीर ने मेरे घर आकर पहुँचाई है। और ये जो इलेक्शन का शेड्यूल आ गया, उसके फिर कागजात नामजदगी दाखिल करना, सिक्योरिटियाँ होना, और अभी जो सिलसिला चल रहा है उसकी वजह से ज़ाहिर है जी कि हमने पार्टी टिकट भी जारी करने थे, उम्मीदवारों का तयन भी करना था पूरे मुल्क के लिए, तो ये मसरूफियात ज़रा हायल रही हैं। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में इम्कान है कि मैं अफ़गानिस्तान जाऊँ। और ये जो आपने सवाल किया है इसी के हल के लिए कि हम दो दोस्त मुल्क, बिरादर मुल्क हैं, हमारी कौमियत भी एक है, हमारा मज़हब भी एक है, हमारी सकाफ़त भी एक है, हम एक दूसरे के इतने करीब हैं कि शायद कोई दूसरा मुल्क इतना करीब नहीं होगा। तो फिर हमारे अंदर एतमाद होना चाहिए, हम एक दूसरे के इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, इस्तक़लाल उसको सामने रखें। अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है और पाकिस्तान का इस्तेहकाम अफ़गानिस्तान की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए हम जाएंगे और ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान बदएतमादी की फ़ज़ाएँ पैदा की जा रही हैं, इंशाअल्लाह इसको तोड़ेंगे। PTI के जो कई उम्मीदवार थे उनको कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, क्या ऐसे हालात में शफाफ इलेक्शन हो सकते हैं? और आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ PTI के लोगों के मुस्तरद हुए हैं, अख्तर जान मैंगल के मुस्तरद हुए हैं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ उनके? जी ज़ाहिर है जी कि अगर इस कागजात पर एतराज़ है तो मेरे कागजात पर एतराज़ मेरे भी मुस्तरद हो जाएंगे। तो ये जो
अन्नेवा कागजात दाखिल करते हैं और कोई पता नहीं करते कि भाई तो इनके ऊपर इतने वाजिबात हैं कि एक पे वो सबूत पेश नहीं कर सकते, अन्नेवा दाखिल किए हैं उन्होंने। इस तरीके से मुख्तलिफ तो फिर होंगे। अच्छा मौलाना साहब, इस तरह के हालात में जिस तरह आप कह रहे हैं कि कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा, पर कैंपेन नहीं कर सकते, तो क्या आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे? मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि मुझे वो माहौल भी दिया जाए। 1 महीने के अंदर आप समझते हैं और अगर हाँ, ये बात अपनी जगह पर है कि अगर वो मुझे पुरअमन माहौल देना चाहते हैं, इस मकसद के लिए अगर चंद दिन मौखर हो जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कोई मसला नहीं होगा। मौलाना साहब, आप जिस तरह से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ पे 22 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग है, 20 घंटे की गैस की लोड शेडिंग है, और आप एक मुअस्सर सियासी वेट भी रखते हैं, तो डेरे इस्माइल खान का क्या बनेगा? मेरे ख्याल में जब मैं इलेक्शन के लिए कागजात दाखिल नहीं किए थे तो तब भी लोड शेडिंग थी। जी बिल्कुल थी, लेकिन आपने अब बहुत बेदाश्त ज़ाहिर है जी हजरत, मैं अर्ज़ करूँ, यहाँ के लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ हम लड़े, हमने यहाँ की बिजली बहाल की, फिर उसके बाद दोबारा हालात ये सूरत हाल बन गई कि शिकायतें उठने लगी हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस बहरान से हम सिर्फ डेरा इस्माइल खान को नहीं पूरे मुल्क को निकालेंगे इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, डेरा इस्माइल खान से पीटीआई तकरीबन इलेक्शन से बाहर नजर आ रही है, तो आपका मुकाबला साबिक सेनेटर साहब से होने जा रहा है या कुंडी बरादरान से? मुझे नहीं मालूम अभी तक, मुझे नहीं मालूम, अपना कानून है तो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। फिलहाल तो इलेक्शन साहब यहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मरकज में नून लीग के साथ हुआ है, जो यहाँ की सियासत है इसके हवाले से अभी तक देखिए, सीट एडजस्टमेंट होगी ज़रूरत की बुनियाद पर, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी हमने हर ज़िले को इजाज़त दी हुई है कि वो सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी पार्टी के साथ। मौलाना साहब, सिटी की सीट जो है बहुत अहमियत के हामिल होने लगी है, तो आप लोगों को पीपल पार्टी की तरफ अगर देखा जाए या जमीयत की तरफ से सिटी की सीट का टिकट का अभी तक फैसला नहीं हो सका, तो आपको किन को देना चाहिए? अभी दिन है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, भाई तो नहीं देंगे? हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। सर, भाटपुर के हवाले से कोई सुन रहे थे कि भाई एहतशाम जावेद अकबर साहब भी आ रहे हैं आज, उस हवाले से क्या पार्टी मौक़िफ़ है या क्या मतलब उनके साथ राब्ते में इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी, या मखदूम बिरादरी के साथ कोई? हम मुंतज़िर हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में फैसला हो जाएगा उसका भी इंशाल्लाह। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जितने आपके तरक्याती मंसूबे शुरू हैं, बड़े मंसूबे क्या आप ये समझते हैं कि इस इलेक्शन के नताइज की वजह से या कोई अगर ऐसा अपसेट हो जाए तो उस तरक्याती मंसूबों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? तरक्याती मंसूबों पर असर नहीं पड़ेगा, तरक्याती मंसूबे और बढ़ेंगे। हमने अपने इस पसमानदा इलाके की तरक्की के लिए एक अहद पैमान किया है, इसकी मट्टी से हमने अहद पैमान किया है, और पूरी तारीख़ हमारी इस बात की गवाह है कि लोगों के मसाइल भी होते हैं, इनफरादी मसाइल भी होते हैं, मुश्किलात भी होती हैं, हम उसके लिए भी हाज़िर रहते हैं, लेकिन ख़ित्ते को तरक्की देना, गुमर यूनिवर्सिटी से लेकर इस सिपैक तक ये तमाम बड़े मंसूबे जितने भी हैं, जिसमें CRBC भी आ रहा है, जिसमें गुमरजाम भी आ रहा है, जिसमें मुफ्ती महमूद हॉस्पिटल भी आ रहा है, जिसमें और जितने भी मेगा प्रोजेक्ट हमारे इलाके में और खत्ते में हैं, वो सिलसिला चलता रहेगा, उसको रोकेंगे नहीं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आगे बढ़ाएंगे। और जो कुछ हो रहा है ये हमने शुरुआत की इस 1.5 साल के अरसे में, इससे आगे जब एक दफ़ा अगर मुस्तकिल हुकूमत हमें मिलती है और उसमें हमें कोई किरदार मजबूत मिलता है तो इसमें इजाफा होगा इंशाअल्लाह, कभी नहीं होने देंगे। मेहरबानी।